systems. You can see the password from here, system password, ICT lab @114. Sessions. Systems, and please turn towards the side. Deepak, kitna submitted hai? 43 more people are submitting. Except 3 persons, others can shut down the system. Actually, the first session we are little bit going in the slow pace so that we finish all the basic requirement, and from after tea time we will continue our all the technical session. Joint director is not available for the inaugural, so now our head alone will be joining for the inaugural. We'll have a short inaugural and then we will start with the technical sessions. But joint director will come, he will come when and where he is available and he'll be joining with us for the validation. Okay, so that's how it will be. So I'll just give a little background because I'm keeping the inaugural short. We'll just, when ma'am comes, we will listen to her. Good morning, everyone. Good morning. So very good morning to one and all, and I take this time to invite our head of the Department of ICT and Training Division, Professor Indu Kumar, under the department in which this particular training program is happening. Welcome, ma'am. And this particular program is being organized as part of strengthening diet and NCRT, and it is being done in 3 phases to cover up all the 36 states and UTs. So from each state and UT, we have called 1 SCRT faculty and 3 diet faculty. Already phase 1 was conducted in October, and there were around 10 states participated in that. And this is the phase 2, and we have 10 states: Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Delhi, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Rajasthan, Jharkhand, and Uttarakhand. These are the states who are participating in the phase 2, and there is last phase is going to happen in February, first week of the next month. So that across these 3 phases, we are covering all the 36 states and UTs, the SCRTs and diet faculty for this particular program. Since all our regional institutes who are there in 6 places are working with the states regularly, we have also invited 1 faculty from each RIE to be part of this training. So since most of these states which is here comes under the region of RIE Bhubaneswar and RIE Ajmer, we have 2 faculty representing RIE Ajmer and RIE Bhubaneswar who has also joined for this training, so that whatever is happening when the RIE is going to take forward this covering up the states, the faculty who have attended here would be a representative to pass on the information. So today we are totally having 46 participants representing 10 states and 2 RIEs, out of which 43 have already reported and 3 persons are delayed due to some thing, like, and they are on the way. So totally we are going to have 46 participants in this second phase of training. With this background, I request now Professor Indu Kumar to address all the participants and encourage them for attending this training. Good morning, everyone, once again, and a very warm welcome to all of you. सभी लोग आप लोग हिंदी स्पीकिंग स्टेट से ही हैं, so would you prefer me to speak in Hindi or in English? Hindi. I'm actually Hindi version of my अरे ट्रेनिंग भी हिंदी में है, bilingual में हो सकता है. अच्छा ठीक है, तो आप सबका स्वागत है जो विभिन्न प्रदेशों से आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं.
इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग सब मास्टर ट्रेनर्स होंगे, ये भी आपको पता होगा, क्योंकि this is training is about workshop on leveraging digital technology for master trainers of state UTs. नेशनल लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है वो एक जगह से हम पूरा नहीं कर सकते, कैस्केड मोड तो जरूरी होता है, लेकिन कैस्केड के इतने ज्यादा लेयर नहीं होने चाहिए कि जो लर्निंग लॉस हो, जिससे जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको, तो हम वो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ से जाने के बाद कि किस तरीके से आप डायरेक्टली अप्रोच कर पाए जो भी ट्रेनिंग होंगे आगे इस कार्यक्रम के, जिनको आपके द्वारा ट्रेन किया जाएगा। NEP 2020 में हम सबको पता है, आप सब ने, क्योंकि आप सब एजुकेटर्स हैं, RI के भी जो प्रतिभागी हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर फ्रॉम RI भुवनेश्वर से? RI भुवनेश्वर 1, RI अजमेर 1। अच्छा, आप अजमेर से, ठीक है। तो जो प्रतिभागी हैं उनको भी ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आगे हम इसको ट्रेनिंग को लेकर जाएंगे। ट्रेनिंग के कंपोनेंट जो कि आप लोगों ने देखा होगा, आपको ये कॉन्सेप्ट नोट मिला है। NEP 2020 के मुताबिक अभी जो भी ये दौर चल रहा है उसमें जिस भी तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं वो सब NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं, और सभी हम एजुकेटर्स हैं तो हमें पता है कि NEP 2020 में किन बातों पर बल दिया गया है। खासकर अगर हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो 2 चैप्टर हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, चैप्टर 23 और चैप्टर 24 ऑफ NEP। उसमें वो सारी बातें बताई गई हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, जैसे जेंडर है, टेक्नोलॉजी है, इस तरीके के कुछ विषय जो NEP 2020 में है वो क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं, जो स्कूल एजुकेशन के ऊपर भी अप्लाई होते हैं और हायर एजुकेशन पर भी अप्लाई होते हैं। बेसिकली NEP 2020 में जो टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेशन की बात की गई है, बंद कर दूं, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग का प्रोफेशनल डेवलपमेंट की इसमें बात करी गई है। टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट की बात की गई है कि हमें टीचिंग लर्निंग असेसमेंट के ऊपर उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चाहे हम टीचर हैं या टीचर एजुकेटर है, ये 3 चीज तो हम सभी करते हैं, वी टीच, वी लर्न एंड वी असेस। तो टेक्नोलॉजी से हम अपना टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट कैसे इनहैंस कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या दिव्यांग विद्यार्थियों की भी है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की है, उनके लिए हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर सकते हैं ताकि उनके एजुकेशन की क्वालिटी को भी हम इनहांस कर पाए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो इन चैप्टर्स में जिनके बारे में बात की गई है। इसके अलावा डिजिटल रिपोजिटरीज डेवलप करने की बात है, CPD को और इनहांस करने की बात है, टीचर ट्रेनिंग की तो बात हम कर ही चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात है कि हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करें, एप्स एंड पोर्टल्स की बात है, LMS हमें अच्छे क्वालिटी के डेवलप करने चाहिए अगर हम टीचर ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब तक हमारे पास रॉबस्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होंगे तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी कई बार लर्निंग लॉस होता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर रियली अटेंडिंग दी मीटिंग। तो जब तक हमारा LMS तो साउंड होना ही चाहिए, लेकिन जो हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं वो भी इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि हम उनको ये इंश्योर करें कि एवरीबॉडी इज लर्निंग, जिसमें हमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट भी करना चाहिए, उनको ऐसे क्रिएटिव असाइनमेंट्स देना चाहिए जो कि हमारे सेशंस पर बेस्ड हो, तभी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, रीडिंग मटेरियल पढ़ते हैं, रिसोर्स पर्सन से लाभ उठाते हैं और उसके बाद असाइनमेंट सबमिशन भी करते हैं, और समेटिव असेसमेंट एंड में हमें वो भी उस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हम लर्निंग इंश्योर कर सके कि जिस पर्पज से हमने डिजाइन किया था ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग को भी इम्प्रूवमेंट की बात
LMS और पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग, ये सब भी की हाइलाइट्स हैं टेक्नोलॉजी में। पर्सनलाइज अडेप्टिव लर्निंग हमें अडेप्टिव LMS बना के इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सब की एरियाज हैं जो NEP 2020 में हाईलाइट हैं, और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रोग्राम शेड्यूल में टॉपिक देखेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, जिसमें आपका NCF और NEP के ऊपर भी सेशन होगा कि NEP के की हाइलाइट्स क्या हैं। इसके अलावा ICT करिकुलम इंटीग्रेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो CIT NCERT के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दिव्यांग जो छात्र हैं, हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल टूल्स हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करना है। किसी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, कोई डाउट है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, वो तो एक इसका पर्पस है, लेकिन असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं और उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा टेक्नोलॉजी से? हाँ, बिल्कुल सही, ऑडियो बुक्स हैं। ऑडियो बुक्स ब्लाइंड के लिए एक असिस्टिव टूल है, टेक्नोलॉजी है। स्क्रीन रीडर है जो उसको ब्लाइंड के लिए है, ये भी स्क्रीन रीडर। और वेबसाइट आजकल वो आता है, वेबसाइट जो रीडेबल फॉर्मेट वेबसाइट हम लोग बना। हाँ, तो एक्सेसिबल वेबसाइट्स भी बनानी है। दो बातें हैं इसमें, एक तो एक्सेसिबल कंटेंट होना चाहिए, जैसे कि आप ऑडियो बुक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई वेबसाइट नेविगेट कर रहे हैं तो वेबसाइट भी एक्सेसिबल होना चाहिए। साइन लैंग्वेज के भी जैसे प्रोग्राम है उसमें होना चाहिए, साइन लैंग्वेज के भी वीडियोस होने चाहिए। बेसिकली जो कंटेंट हम डेवलप करें वो यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग पर बेस्ड होना चाहिए, UDL प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लर्नर हैं, अगर हम उनके लर्निंग स्टाइल्स को देखें तो दे हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। हम कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं जो लर्निंग स्टाइल्स हैं। कुछ लर्नर्स होते हैं ऑडिटरी, जो सुन के ज्यादा अच्छा सीखते हैं, वो आप सब जानते होंगे। विजुअल है, जो देख के ज्यादा अच्छा सीखते हैं। काइनेस्थेटिक्स है, जो करने का मतलब ये नहीं है कि हाथ से ही कार्य किया जाए। मेंटल एक्टिविटी भी काइनेस्थेटिक के अंदर आती है, कि अगर हम बच्चों को इंटरनेट सर्फ करके डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ करने के लिए दे, बनाने के लिए दे, जहाँ उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे जो फैकल्टी हैं ब्रेन के, वो यूटिलाइज होते हैं, दैट इज आल्सो करके सीखने वाली एक्टिविटी। तो ये सब तरीके के लर्नर होते हैं, और कुछ लर्नर होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में, तो वो उससे ज्यादा अच्छा सीखते हैं। तो ये तो हम एजुकेशनिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने कुछ लर्निंग स्टाइल्स की कैटेगरी डिफाइन करी है, लेकिन बच्चों के लर्निंग स्टाइल उतने ही डिफरेंट होते हैं जितने डिफरेंट हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, कि वो कब क्या चीज से बच्चे को स्टिमुलस मिलेगा और वो उससे उसकी लर्निंग कंसोलिडेट होगी, वो बहुत अलग अलग होते हैं। कंटेंट बनाते समय या बच्चों को पढ़ाते समय हमें इन लर्निंग स्टाइल्स का ध्यान रख के UDL बेस्ड कंटेंट की बात करनी चाहिए। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का सेशन है उसमें आप ये सब सुनेंगे। इसके अलावा बहुत सारी अभी हम इमर्सिव टेक्नोलॉजीज की बात भी NEP 2020 में करी गई है, जिसमें AR VR कंटेंट है, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इस तरीके के कंटेंट आते हैं। लेकिन यहाँ भी जब तक हम कंटेंट एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम बुद्धिमानी से ये सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमें किस तरीके का कंटेंट बच्चों के लिए किस टॉपिक या कॉन्सेप्ट पर बनाना है, क्योंकि कंटेंट की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सब्जेक्ट में भी नहीं, वो जो कैटेगरीज है वो सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। जैसे कुछ कंटेंट होता है जो फैक्चुअल होता है, जो फैक्ट बेस्ड होता है, तथ्यगत होता है, तथ्य आधारित कंटेंट है। कुछ है कॉन्सेप्चुअल, जहां पर कि हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है किसी सब्जेक्ट में। तो फैक्चुअल हो गया, कॉन्सेप्चुअल है, फिर प्रोसीजरल है, जहां पर कुछ प्रोसेसेस की हम बात करते हैं, जिसमें कुछ प्रक्रियाओं के बारे में हमें
उन्हें बताना होता है, जहां पर प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। और मेटाकॉग्निटिव है, जिसको हमें इमोशनल लेवल पर भी चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो ये सभी प्रकार के कंटेंट हमें मिलते हैं। तो जब हम कंटेंट बनाएं बच्चों के लिए, या पुस्तकें भी बनाएं, पुस्तकें भी एक प्रकार का कंटेंट है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह के कंटेंट के लिए क्या लर्निंग रिसोर्स होना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट का कोई एग्जांपल दें आप किसी भी सब्जेक्ट में। फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्चुअल कंटेंट क्या है, जो भी विषय आप का है। कोई भी चीज गिराते हैं तो नीचे ही थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ये एक फैक्ट है जो न्यूटन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और ये तो साइंस का, और किसी विषय का हिस्ट्री में डेट एंड इवेंट्स जो होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं, हाँ वो भी फैक्चुअल है। हिस्ट्री में जो डेट्स एंड इवेंट्स हैं वो फैक्चुअल कंटेंट है, बिल्कुल ठीक। ज्योग्राफी में जो राज्य, राजधानियां, दुनिया में जितने देश हैं उनकी राजधानियां, ये सब फैक्चुअल कंटेंट है। तो जो फैक्ट आधारित कंटेंट है उसके लिए हमें डिजिटल रिसोर्स AR/VR की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स है। राज्य राजधानियों के लिए अगर हम एक डिजिटल मैप भी देखें तो डिजिटल मैप से ही भी वो हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी की आपने जिक्र किया, उसमें अगर हम टाइमलाइन का प्रयोग करें तो टाइमलाइन उसके लिए एक सही रिसोर्स है। जो आपने बात की कि कोई भी वस्तु नीचे ही गिरती है, ऊपर नहीं जाती, ये फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि उसको समझाना जरूरी है कि भाई नीचे क्यों जाती है। वो तो हम देखते आ रहे हैं, हमें लगता है हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन वो क्यों भाई ऊपर क्यों नहीं जाती। पेड़ से आम गिरता है तो वो एप्पल गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता। तो ये फैक्ट भी है, क्योंकि ये है, ये प्रूफ रियलिटी ये फैक्ट भी है, बट इसको इसको हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूव भी करना है, तो ये कॉन्सेप्ट भी है। इसी तरह से जैसे अर्थ, पृथ्वी गोल है, ये एक फैक्ट भी है बट ये कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि हम उसको गोल तो देखते नहीं है, हमें तो फ्लैट दिखाई देती है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, और बायोलॉजी में जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब प्रोसीजरल कंटेंट है, क्योंकि इसमें प्रोसेसेस हैं। ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म कैसे होते हैं, लैंड फॉर्म फॉर्मेशन, ये भी प्रोसीजरल है, क्योंकि सदियों की प्रक्रिया के बाद कोई लैंड फॉर्म इस शेप में आता है जिस शेप में हम उसको आज के समय में देखते हैं, चाहे वो पहाड़ है, पठार है, झरना है, झील है। तो ये बनते हैं धीरे धीरे और सदियों तक बनते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो जहां हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, वहां फिर ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन, इस तरीके के चीजों की तरीके के कंटेंट की बात होती है, जहां हमें 3D विजुअलाइजेशन बच्चे को कराएगा। हाँ, वो बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग विदाउट आप जब तक दिखाएंगे नहीं तो वो नहीं समझ में आता है। यानी कि जब हमें 3D विजुअलाइजेशन चाहिए बच्चे को, बिना 3D विजुअलाइजेशन के हम नहीं समझा पाएंगे, तो वहां AR/VR और ऐप बेस्ड जो कंटेंट है, जो 3D जिसमें हमें दिखाई देता है, तब वहां उसकी जरूरत है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, और ये भी एक तरह के असिस्टिव तरीके ही हैं जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन है, जो CWSN नहीं है, उनको बताने के लिए। तो हमें वो CWSN को भी उससे बेटर समझ में आएगा, और जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं उनको भी बेटर समझ में आएगा। तो UDL कंटेंट ही नहीं, जो हमारा पूरा लेसन प्लान है वो भी UDL प्रिंसिपल पर हमें बनाना चाहिए, और उसमें जहां जहां जिस प्रकार के कंटेंट की आवश्यकता हो वो कंटेंट बनाना चाहिए। कुछ प्रकार के कंटेंट का डॉक्टर एंजल आपको ऑलरेडी एक्सपोजर दे रही हैं इस वर्कशॉप में, जिसमें एनिमेशन बनाना और ऑडियो वीडियो कंटेंट किस तरीके से हम बनाते हैं उन कंटेंट की बात कर रही है। लेकिन बीच में आपको बहुत सारे और टूल से ये इंट्रोड्यूस कराएंगी। तो आपको लगेगा कि 5 दिन या 3 दिन, जितने भी दिन का ये प्रोग्राम है, वो पूरा नहीं है। हाँ, 5 डेज का है, तो वो हमें हमेशा लगता है किसी भी ट्रेनिंग में कम पड़ेगा। ट्रेनिंग का उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप की लर्निंग ट्रेनिंग में 5 दिन की ट्रेनिंग में खत्म हो गई, क्योंकि वो शुरुआत होती है लर्निंग की। और ICT टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज ऐसी चीज है, जितना आप इनको प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपकी प्रोफिशिएंसी होगी इसमें। यहाँ है आपको एक्सपोजर देना अलग अलग तरीकों का। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है तो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का, ऑडियो वीडियो कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, उसका एक्सपोजर देना। एक अच्छा ऑडियो की क्या खासियत है, स्क्रिप्ट की क्या खासियत है। लेकिन आगे लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आपने देखा होगा इस बार जो एनईपी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भी बात की गई है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए भी उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है यहाँ, जिसको अडल्ट एजुकेशन के नाम से हालांकि हम बोल रहे हैं। अडल्ट एजुकेशन इसीलिए कह रहे हैं कि हम जब अडल्ट भी हो जाते हैं और उसके बाद भी जब तक है तब तक हम लर्निंग करते रहते हैं। पहले अडल्ट एजुकेशन जो था इतने कंसंट्रेटेड तरीके से एनसीईआरटी के दायरे में नहीं आता था। और विमेन इन चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ कंपोनेंट्स आते थे एलिमेंट्री एजुकेशन के, कुछ एनसीईआरटी के उसमें आते थे। लेकिन अभी जब हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं तो एवरीथिंग हैज बीन सीन एज अ कंप्लीट होल। इसी तरीके से एजुकेशन एक होलिस्टिक वे में हमें एजुकेशन को देखना चाहिए। और जब तक हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स नहीं बनेंगे तब तक हम बहुत खतरे में हैं एक तरह से। इसीलिए हमारे करिकुलम में आपके इस ट्रेनिंग डिजाइन में साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी बात करी गई है। जहाँ टेक्नोलॉजी है वहां उससे उत्पन्न बहुत सारे खतरे भी हैं। अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम सेफ्टी मेजर्स हमें नहीं पता होगा एज पेरेंट और एज टीचर्स और एज टीचर एजुकेटर्स, तो हम अपने बच्चों को भी सेफ नहीं रख पाएंगे। हालांकि दे आर मोर प्रोफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी, तो हमें उनके साथ पेस मिलाकर चलना पड़ेगा। और ये जो जनरेशन है वो है भी हमारी हमारी जनरेशन। आप में से तो बहुत यंग लोग भी हैं। हमने तो बहुत सारे लाइफ में फेजेस देखे। वो टाइम भी देखा है जब वीक में एक दिन टेलीविजन पर प्रोग्राम आया करता था। और अब कितने सारे 24/7 चैनल्स भी हैं। टेक्नोलॉजी के नाम पे ऐसा कुछ नहीं था, कंप्यूटर्स भी हमारे सामने ही आए हैं। आईसीटी इन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारे सामने आया है। अगर हम सीखते नहीं रहेंगे निरंतर तो आज हम जहां हैं वहां पे नहीं पहुंचते वहां तक। और सीआईटी एज एन इंस्टीट्यूशन पर भी ये बात अप्लाई होती है। एक समय था जब सीआईटी में केवल ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स ही बना करते थे। और 100 का टारगेट साल का है तो बहुत अच्छा टारगेट हमने अचीव कर लिया है। 100 का टारगेट लिया जाता था और वही साल भर में काम होता था। और आज अगर आप देखें सीआईटी को, तो सीआईटी में कोई भी टेक्नोलॉजी का ऐसा एरिया नहीं है जो आज के समय में करंट एरिया है। चाहे वो एआर वीआर कंटेंट हो, चाहे एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जो लर्निंग की। तो फैकल्टी भी इवॉल्व हुई है यहाँ और इंस्टीट्यूशन भी इवॉल्व हुआ है। तो हमें निरंतर इवॉल्व होना है। पहले हमारे एआई का फील्ड नहीं था, लेकिन एआई अभी बज़वर्ड है। तो वी हैव एन एआई सेल आल्सो। और आपने देखा होगा आपके इसमें जो ट्रेनिंग शेड्यूल है इसमें भी एआई की भी बात करी गई है। एआई से भी जैसे है हम देखते हैं कि बहुत सारे उसको यूज करने में भी हमें लगता है हम अपना ब्रेन यूज करना बंद कर देते हैं, वी डिपेंड ऑन एआई। लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ आपको यही बताया जाएगा कि एआई भी किसी ह्यूमन ने ही बनाया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही बना है। तो एआई को यूज करने के लिए भी ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस से हम उसको उसमें इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब फिर तो एआई आपके ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस उससे होने बंद हो जाएंगे, आप एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रॉपरली यूज एआई। इसीलिए एआई भी है इसमें, साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है। रेस्ट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। आपको रिसोर्सेज यहाँ बता दिए जाएंगे। साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की एनसीईआरटी ने गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी दे आर देयर ऑन आवर वेबसाइट। कुछ एक्सपोजर आपको यहाँ मिलेगा। And I believe after this 5 days you will get to know many dimensions of ICT and educational technology। और जिस तरीके से डॉक्टर एंजल अपना प्रोग्राम डिजाइन करती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं,
उसमें पहले आपको लगेगा कि हाँ बहुत क्योंकि हमें बोलने की आदत होती है, सुनने की आदत तो होती नहीं है टीचर एजुकेटर्स को, लेकिन आपको बोलने के, करने के, हैंड्स ऑन के बहुत मौके यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन टाइम का थोड़ा सा पाबंदी रहेगी बिकॉज हमारे सभी ट्रेनर्स, डॉक्टर एंजल इसमें है, वो टाइम की पाबंदी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब तक हम टाइम के पाबंद नहीं होंगे हमारे बहुत सारी जो प्लान चीजें हैं छूट जाएंगी। तो कृपया उस चीज को में आप डॉक्टर एंजल का सहयोग करें और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा लाभ उठाएं, एंड एट द एंड ऑफ इट यू विल फील, आई एम वेरी श्योर दैट आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली हैं और ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिले हैं कि आज आप आगे सीखने को भी और प्रेरित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड यू विल लर्न हैप्पीली। Thank you, Indu ma'am, for giving us the base for from NEP and NCUF of why this program is happening, and also encouraging all the participants about and orienting them about all this program. Thank you so much for taking out time and coming for the inaugural session. With this, we will be starting. After the tea time, we will be continuing our technical session from session 1. So today, mostly we are going to focus on the objective of the training, like on why we are talking about leveraging diet and SCRT, and what NEP NCF talks about, the transformation which is required from us, and what NEP talks about leveraging digital technology will be the first day's focus for ourselves. We will have group activities and some kind of interactions in between. With this, we will be starting our session. Thank you so much, ma'am, for coming and joining us. We will quickly break for tea. We'll take exactly 15 minutes and we'll be back inside by 11:20. Thank you. Okay. All the very best Thank to you. all of you. Thank you, ma'am.